Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? I hope and pray you all are doing well. Dear students, today we will again reinforce the lesson living and non-living things. Besides that, we will also do some worksheets here. Dear students, first of all, I will revise the concepts of living and non-living things. जैसा कि आप पहले भी बहुत दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं and I hope you all know that what are the living things and what are the non-living things. Living things you can see in the picture here are categorized into the three different types. There are three types of living things. People, the people are human beings like us. इसमें इंसान शामिल हैं. People means इंसान. The first form of the living thing is human being. The next is animals. एनिमल्स में सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तमाम एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एनिमल विच आर लिविंग. You can see here a parrot, an elephant, and a horse. These are the living things. The next are the plants. Plants are also living things. So, students, you can understand the living things are the things which can grow, which can eat, which can move from one place to another, and which can produce their babies. Now see in the picture there are non-living things also showing in the picture. So non-living things are of two types, natural and the man-made. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो हमारे पास इसी तरह से मौजूद हैं. जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, सन है, मून है, क्लाउड्स हैं. दीज ऑल आर द नॉन लिविंग थिंग्स. एंड इसके अलावा जो हैं आपके इर्द गिर्द भी बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं. यहाँ पे एक रॉक बनाई गई है. अदरवाइज़ आपके पास बकेट है. घर में यूज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं. टेबल, चेयर, योर बुक्स, योर बैग, एवरीथिंग इज़ नॉन लिविंग. So man-made non-living things are also, you can see that book, that bag, these are man-made. जो इंसानों ने खुद बनाई हैं, जो हमने खुद बनाई हैं non-living things, वो man-made non-living things होती हैं. So this was the concept of the living and non-living things. I know you already know this, but फिर भी मैंने आपके लिए इसको एक दफ़ा रिवाइज किया है. Now come to the point. We will do the worksheet today. Here is a question. Circle the living thing. Dear students, you can see we have to circle the living things. In first picture, you see there is a parrot. Parrot is a living or a non-living. You can see that parrot is a living because parrot can move, parrot can eat, parrot can go from one place to another, and parrot can reproduce. So parrot is a living thing. We will circle the parrot. The next are the clouds. क्या क्लाउड्स लिविंग थिंग्स होते हैं? क्लाउड्स तो मूव करते हैं. नाउ यू विल से दैट क्लाउड्स आर लिविंग थिंग. नो, क्लाउड्स तो हवा की वजह से मूव करते हैं. अदरवाइज क्लाउड्स कैन नॉट ग्रो, क्लाउड्स कैन नॉट ईट, क्लाउड्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो क्लाउड्स आर नॉन लिविंग थिंग. क्लाउड्स को हमने सर्कल नहीं करना. नेक्स्ट पिक्चर इज़ अ ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की पिक्चर है. ह्यूमन बीइंग्स कैन ग्रो, कैन ईट, कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर and can reproduce. So we will circle the human beings. The next you can see are the shape and or the pot. This one आप देखें कि क्या ये मूव करती है. ये पानी के अंदर मूव करती है, बट इसको एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है. इसको मूव करने वाले मल्लाह की ज़रूरत होती है. इसको सेलर की ज़रूरत होती है जो इसको चलाता है. ठीक है, तो फिश जो बोट है, जो शिप है, वो नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर ऑन इट्स ओन सेल्फ. ठीक है, एंड शिप और बोट कैन नॉट ग्रो. ये बड़ी भी नहीं होती, जितनी बना देते हैं मैन मेड है ना, उतनी ही रहती है. उसके अलावा ये ब्रीथ भी नहीं करती, रिप्रोड्यूस भी नहीं करती. The next is a dog, and you all know that dog is a living thing because dog can crow, dog can eat, dog can breathe, and dog can reproduce. The next is a tree.
यस, ट्री कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। ट्री के बीज होते हैं, उससे और ज़्यादा पौधे निकल आते हैं, ट्री रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, ट्री जो है वो मूव करता है, कैसे? उसकी ब्रांचेस मूव करती हैं, है ना? अच्छा, वो रोशनी की साइड पे मूव कर जाता है। अच्छा, ट्री जो है वो ईट भी करता है, खाना भी खाता है, अपने अपने अंदर से ही वो अपनी फूड बनाता है, और प्लस वो रूट्स से भी लेता है, पानी लेता है, रोशनी लेता है, ब्रीथ भी करता है। सो ट्री इज़ अ लिविंग थिंग। The next is a mushroom. Mushroom is a living thing or a non-living thing. Mushroom is a plant. Now you can see mushroom is a plant. So mushroom is a living thing. The next is a bag, school bag, which is man-made bag. So bag cannot reproduce, cannot go from one place to another, cannot eat, cannot breathe. So bag is a non-living thing. द नेक्स्ट इज़ अ जार ऑफ कैंडीज और एनी बॉटल, वो भी नॉन लिविंग थिंग होती है, बिकॉज वो भी ना मूव करती है, ना ईट करती है, ना ड्रिंक करती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर living things which I have circled here. Now come to the next worksheet. Okay students, the next worksheet is question है, is this living or non-living? Circle the correct answer. And here is you can see a picture of anything और उसके सामने लिखा हुआ है living and non-living. अब आपने मुझे बताना है कि is it living or non-living. First of all you can see there is a home. यहाँ पे घर बना हुआ है, this one, ठीक है? आपने बताना है ये living है कि non-living. Yes, जो घर होता है, जो होम है, जो हाउस है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, वो मूव नहीं करता। देखें, जहाँ घर बना देते हैं वहीं रहता है ना हमेशा। अच्छा, घर सांस भी नहीं लेता, ईट भी नहीं करता, कुछ भी खाता नहीं है। सो इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। हम इसको सर्कल कर देंगे। द नेक्स्ट इज पेंसिल, दिस वन। द पेंसिल इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग बिकॉज पेंसिल भी ग्रो नहीं करती, जितनी लेकर आते हैं उतनी ही रहती है ना, बल्कि शार्प करने से वो छोटी होती जाती है। इसी तरह ब्रीथ भी नहीं करती, मूव भी नहीं करती, जहाँ रख देते हैं वहीं पड़ी रहती है। अच्छा, नेक्स्ट आर द प्लांट्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्लांट। नाउ यू सी पिक्चर ऑफ अ प्लांट। Plants can move towards the sunlight. Plants can eat their own food. Plants can reproduce. उनके बीज होते हैं, उनसे नए plants बनते हैं. So plants are living things. The next is rabbit. नाउ यू कैन सी रैबिट तो भागते दौड़ते हैं, रैबिट तो बड़े अच्छे लगते हैं भागते हुए। रैबिट्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उनके आगे बेबी रैबिट्स भी होते हैं। रैबिट्स तो ब्रीथ भी करते हैं, और रैबिट्स जो हैं वो ईट भी करते हैं, कैरेट खाते हैं ना बड़े शौक से रैबिट्स। और रैबिट्स आर लिविंग। नेक्स्ट कम टू द बस। बस कम टू द पिक्चर ऑफ बस और द कार। अच्छा, जो बस है या कार है उसको चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वो खुद से मूव नहीं कर सकती। सेम इज़ द केस कि बस खाना भी नहीं खाती, बस जो है वो ब्रीथ भी नहीं करती। सो बस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट इज़ योर लंच बॉक्स। यस, दिस वन। लंच बॉक्स जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है या इज़ ऑफ एनी मटेरियल। लंच बॉक्स जहाँ रख देते हैं वहीं पड़ा रहता है, वो मूव भी नहीं कर सकता, वो ग्रो भी नहीं कर सकता, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करता। एक लंच रहता है तो एक ही होता है, इसको भी नॉन लिविंग को टिक करेंगे, सर्कल करेंगे। द नेक्स्ट इज़ बुक। बुक भी है, मैन मेड है, हमने बनाई है, इंसान ने बनाई है। सो बुक इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग। आगे है फिश। यस, आई लाइक फिश वेरी मच। फिश कैन मूव इन द वाटर, फिश कैन ग्रो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिश कैन टेक ब्रीथ, फिश कैन ईट थिंग्स। ठीक है, फिश इज अ लिविंग थिंग। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्कशीट. Okay students, now come to the next worksheet. You can see here has written how many living things do you see? This question, how many living things do you see? There is a box. इस box के अंदर different living things हैं. आपने only living things को बताना है. You will not circle anything. आपने circle नहीं करना. You will count. This is a frog. Tell me, frog is a living or a non-living? Frog is a living. Okay, table. Table is a living? No. अच्छा जी, ग्लास, ग्लास ऑफ मिल्क और ग्लास ऑफ जूस,
नो, ग्लास इज आल्सो नॉन लिविंग। फिशेज आर लिविंग, अभी तो आपने पढ़ा था। काउ इज आल्सो लिविंग, क्योंकि काउ जो है वो ग्रो भी करती है, बेबीज भी होते हैं काउ के। और काउ जो है वो वन प्लेस से अनदर मूव भी करती है, काउ ईट भी करती है, ड्रिंक भी करती है। और अच्छा जी, इसलिए काउ इज़ अ लिविंग थिंग। आगे लायन भी सेम एनिमल है, लायन भी लिविंग थिंग है, बिकॉज ऑल द एनिमल्स आर लिविंग थिंग ना। नाउ काउंट लिविंग थिंग्स, 1 2 3 4। हाउ मैनी लिविंग थिंग्स आर देयर? 4। आपने सिर्फ यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने लगाया 4 के ऊपर, आपने ये लगाना है और कुछ भी नहीं करना। वो मैंने आपको समझाने के लिए टिक किया था। आगे पिक्चर में आ जाएं, हाउ मैनी नॉन लिविंग थिंग्स डू यू नो, कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स का, कि कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स का पता है। अब आप देखें, वाटर, वाटर हो गया नॉन लिविंग थिंग। एंड तो नॉन लिविंग थिंग नहीं होती ना। अच्छा, कार, कार को देखें, कार इज़ आल्सो नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि कार जो है वो खुद से मूव नहीं करती, कार एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा सकती, कार ईट भी नहीं करती, कार रिप्रोड्यूस भी नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट है टेबल। टेबल को देखें, टेबल भी नॉन लिविंग थिंग है, द सेम, टेबल मूव नहीं करता, टेबल किसी प्लेस से, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे नहीं जाता, कुछ खाता भी नहीं है, रिप्रोड्यूस भी नहीं करता। अच्छा, आगे आ जाए सन पे। सन इज़ आल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज सन के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं कि सन खाना खाता हो, सो जाता हो, जाग जाता हो, या कुछ ह्यूमन बींग्स वाले या एनिमल्स वाले काम करता हो। अच्छा, लास्ट इज द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज लिविंग थिंग, एवरीबडी नोज। अब नॉन लिविंग थिंग्स को काउंट करें, 1 2 3 4। सो यू विल सर्कल द 4 हियर। नाउ कम टू द वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल द ऑड वन आउट। अच्छा, ऑड वन आउट हम किसे कहते हैं? ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हों, उनमें से कोई एक अपने आप को ऑड फील करे, यानी वो दूसरों जैसा ना हो, उनसे डिफरेंट हो। अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल में यहाँ पे समझाती हूँ कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपको 4 थिंग्स हमने दी हैं, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे लाइन लगाती हूँ, दिस वन हाईलाइट करती हूँ कि ये एक बॉक्स है, इसमें 4 थिंग्स हैं। अब आपने देखना है कि आइदर दीज थिंग्स रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। अगर ये थिंग्स एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक है, तो फिर ये ऑड नहीं है। लेकिन एक चीज़ इनमें से ऐसी ज़रूर होगी जो क्वाइट डिफरेंट होगी। फर्स्ट में आप देखें, जग है। अभी चूंकि आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पढ़ा है ना, तो आपने उसी के हिसाब से इसको सोचना है, देखना है। फर्स्ट में देखें, जग है। जग क्या है? नॉन लिविंग थिंग। आगे देखिए, सन है। सन क्या है? नॉन लिविंग थिंग। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग, फ्रॉग इज अ लिविंग थिंग, राइट। अच्छा, आगे देखिए, बुक्स, बुक्स क्या है? ऑड, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इन 4 में से आपको ऑड कौन सा लग रहा है, जो कि दूसरों से डिफरेंट है थोड़ा सा। बिकॉज यहाँ पे आपने देखा कि 3 थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड ओनली, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग एंड ओनली वन थिंग इज द लिविंग थिंग विच इज़ अ फ्रॉग। सो 3 थिंग्स मैं आपको सर्कल करके दिखाती हूँ। These 3 things are non-living things and only frog is a living thing. So odd one कौन सा होगा इसमें से? सिर्फ frog। आपने सिर्फ frog को सर्कल करना है, ठीक है, सर्कल करना है frog को। नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, कार है आपके सामने, टेबल है, ग्लास ऑफ मिल्क है और बटरफ्लाई है। अब आपने देखना है, कार जो है नॉन लिविंग है, टेबल भी नॉन लिविंग है, ग्लास भी नॉन लिविंग है, तो बटरफ्लाई तो लिविंग है, बटरफ्लाई का हम क्या करेंगे? सो बटरफ्लाई इज एन ऑड वन आउट। बटरफ्लाई को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसको तो अपने जैसे लिविंग थिंग्स में होना चाहिए था ना। सो उसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कॉलम है फिश, खाओ, कैट, सॉरी, फिश, खाओ, चेयर एंड लॉयन। तो फिश जो है वो भी लिविंग थिंग है, काउ भी लिविंग थिंग है, चेयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है एंड लायन इज आल्सो लिविंग थिंग। सो हियर इज द चेयर विच इज कॉल्ड द ऑड वन, क्योंकि चेयर सिर्फ नॉन लिविंग है, अदरवाइज जो 3 थिंग्स हैं वो 3 की 3 लिविंग हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा है। आपने इनको इसी तरह से डिटेल में एक दफ़ा और रिवाइज करना है
और इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।